good morning to all of you. Yesterday I discussed the important topic of this chapter, that is non-aligned movement. And in that topic I discussed that how our Prime Minister Jawaharlal Nehru support the non-aligned movement, and because of his support different countries also have supported non-aligned movement, and because of the non-aligned nations and movement, the peace and security established in the world. Now today I am going to discuss the new topic of the chapter, that is partition and unification of Germany. Partition means अलग करना और unification यानी फिर से जुड़ना. तो जर्मनी कैसे अलग हुआ था, जर्मनी की किसे अलग किया गया था और कैसे फिर जर्मनी एक हो गया, उसके बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखेंगे. Germany was the main cause behind both the world wars. It faced a humiliation defeat in World War II. Humiliating यानी कि अपमानजनक. तो हमें मालूम है कि दोनों ही वर्ल्ड वॉर के अंदर जवाबदार कौन था, जर्मनी. यानी जर्मनी की ही वजह से दोनों वर्ल्ड वॉर, दोनों लड़ाइयाँ हुई थी और वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत अपमानजनक उसकी हार हुई थी. All its states administration and economic collapsed completely. There was not a single large party left in the whole of Germany that could rule the nation. In addition to that, there was a fear that Germany would pose threat to the world once again if it emerges a military power once again. Therefore, the defeated Germany was divided into 4 administrative segments. The Soviet Red Army in the later phase of the war had captured the eastern part of Germany. Therefore, it was accepted that Eastern Germany would remain in control, whereas it was decided that America would control southwestern side of Germany, France would control its area near France, while Britain would control areas of Germany bordering Belgium and Holland. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें मालूम है कि दोनों वर्ल्ड वॉर के लिए जर्मनी जवाबदार थी. अब सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी की बहुत ही अपमानजनक हार हुई और वो कम्प्लीटली, वो देश जो है वो इकोनॉमिकली कम्प्लीटली डाउन हो गया, बर्बाद हो गया. अब ये बात ये थी कि उस जर्मनी के अंदर, उस देश के अंदर ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो इस देश को रूल कर सके, इस देश को चला सके. दूसरा ये डर था कि अगर जर्मनी फिर से पावरफुल बन गया तो हो सकता है फिर से भी लड़ाई हो सके. इसलिए क्या डिसाइड किया गया स्टूडेंट्स की ये जो सोवियत रेड आर्मी है उसने जर्मनी का जो ईस्टर्न पार्ट है उसके ऊपर अटैक किया और जर्मनी का ईस्टर्न पार्ट जो है उसने अपने कंट्रोल में ले लिया. यानी कि अब से सोवियत रेड आर्मी, जो जर्मनी का ईस्टर्न पार्ट था वो सोवियत रेड आर्मी उसके ऊपर राज पावर करने वाली थी, रूल करने वाली थी. फिर ये डिसाइड किया गया कि ईस्टर्न जर्मनी, ये जो अमेरिका है वो साउथ और वेस्टर्न साइड, जर्मनी की जो साउथ वेस्ट साइड है वो पूरा साउथ वेस्ट पार्ट वो अमेरिका रूल करेगा उसके ऊपर. और फ्रांस जो है वो जर्मनी का जितना भी एरिया फ्रांस के नज़दीक है वो पूरा का पूरा एरिया फ्रांस रूल करेगी. और जर्मनी का जो बाकी का जो बेल्जियम और हॉलैंड की बॉर्डर के पास का जो एरिया है उसके ऊपर ब्रिटेन राज करेगा. तो ऐसे पूरी जर्मनी को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया और हर एक पार्ट के ऊपर कोई ना कोई देश कंट्रोल करने वाला था. यानी कोई ना कोई देश उसके ऊपर राज करने ही वाला था, राज किया था. मतलब कि हम कह सकते हैं कि जर्मनी को थोड़े थोड़े टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया और सभी पार्ट के ऊपर कोई ना कोई देश राज कर रहा था. बस उन्हें यही डर था कि अगर जर्मनी फिर से पावरफुल बन गया तो फिर से वर्ल्ड वॉर हो सकती है. America, France and Britain started thinking about certain alternative arrangement. Meanwhile, an atmosphere of distrust and doubt had already started between two power blocs, America and other Western Europe
European countries established Federal Republic of Germany. This was administered jointly by America, Britain, and France. On the other side, the Soviet Union also declared East Germany as Democratic Republic of East Germany. Thus, after the war, two independent German states came into existence, namely West Germany Democratic and East Germany Communist. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ट्विस्ट आया कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन थे, उन लोगों ने अल्टरनेटिवली यानी कि चेंजेस अरेंजमेंट के अंदर चेंजेस करना सोचा। फिर ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा हुआ, ऐसा ही सिचुएशन पैदा हुई कि उन देशों के अंदर एक दूसरे के प्रति डाउट होने लगे और डिस्ट्रेस अविश्वास पैदा होने लगा दो पावर के बीच में। कौन से? अमेरिका और रसिया। ये जो टू पावर ब्लॉक थे उन दोनों के बीच में आपस में विश्वास और डाउट अविश्वास और डाउट पैदा होने लगे। तो क्या डिसाइड किया गया कि अमेरिका और बाकी के जितने भी वेस्ट यूरोप के वेस्ट कंट्रीज़ थी उन्होंने जर्मनी का फेडरल रिपब्लिक जर्मनी, मतलब कि अमेरिका जर्मनी के जिस साइड पे रूल कर रहा था उस साइड के ऊपर उसने फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी एस्टैब्लिश किया। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें और उसके ऊपर कौन कौन राज कर रहा था, तो अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये तीनों देश मिलके इस फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के ऊपर राज कर रहे थे। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सोवियत यूनियन यानी कि रसिया ने ईस्ट जर्मनी जिसके ऊपर वो राज कर रहा था, जर्मनी का ईस्ट पार्ट, उसके ऊपर वहाँ पे ईस्ट जर्मनी के ऊपर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट जर्मनी एस्टैब्लिश किया। तो इस तरह स्टूडेंट्स जर्मनी के दो पार्ट हो गए, एक था ईस्ट जर्मनी जो कि कम्युनिस्ट था और दूसरा था वेस्ट जर्मनी जो कि डेमोक्रेटिक यहाँ की लिखिए जहाँ पे पब्लिक का रूल हो, पब्लिक का इम्पोर्टेंस हो। तो ऐसे पूरी जो इतना बड़ा जर्मनी देश था उसके दो पार्ट हो गए, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। As Germany's three western segments were united, three administrative segments of Berlin also united. In a reaction to this, Soviet Union in April 1948 declared Berlin blockade. This resulted into tremendous tension between the Soviet Union and the Western countries. Later on, a high and a 42-kilometer long wall separating Western and Eastern Berlin was constructed. अब इस जर्मनी के जो प्रॉब्लम था उसके अंदर एक नई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आ गई कि जब जर्मनी के जो तीन पार्ट थे, वेस्टर्न तीन पार्ट, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान बर्लिन के जो तीन पार्ट थे वो जो बर्लिन देश था वो यूनाइटेड हो गया, जुड़ गया। तो सोवियत यूनियन ने अप्रैल 1948 के अंदर बर्लिन ब्लॉकेड डिक्लेयर किया। जैसे आगे हमने देखा था कि अमेरिका ने क्यूबा क्राइसिस के दौरान कि क्यूबा ब्लॉकेट कर दिया था, वैसे यहाँ पे रसिया ने बर्लिन को ब्लॉकेट कर दिया। उसका रिजल्ट ये आया कि यूरोप की जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज थी और सोवियत यूनियन यानी रसिया, उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा टेंशन बढ़ गया, टेंशन का माहौल बढ़ गया। और इसी की वजह से बर्लिन को अलग करने के लिए ईस्ट और वेस्ट बर्लिन के बीच में बहुत ही लंबी और 42 किलोमीटर लंबी और बहुत ऊंची दीवार बनाई गई उसे सेपरेट यानी कि अलग करने के लिए। तो ऐसे बर्लिन अलग हो गया ईस्ट और वेस्ट पार्ट में। The communist government tried to prevent thousands of East German citizens from jumping and entering into the free atmosphere of Western Germany. Many people lost their lives in doing so. After about 4 to 4.5 decades, Western Germany made an astonishing development. Experts consider this as German miracle. There was no remarkable change in the economic condition of East Germany. East Germany communist government crushed all hopes of its people for political freedom and rapid economic development. अब स्टूडेंट्स एक अचानक ही एक जर्मनी के अंदर मिरेकल हुआ जिसको जर्मन मिरेकल के नाम से जाना जाता है। हमने देखा कि जर्मनी को अलग करने के लिए बीच में बर्लिन के बीच में दीवार बनाई गई जिससे ईस्ट और वेस्ट जर्मनी अलग हो गए। अब ईस्ट जर्मनी के लोगों को दीवार कूद के वेस्ट जर्मनी में जाने की इजाज़त नहीं थी। अगर वो लोग ऐसा करते तो ऐसा बहुत सारे
लोगों ने करने की ट्राई की, तो ऐसा करने के दौरान वो लोग मारे गए। अब बहुत टाइम गुजर गया और फिर 4 डिकेड और हाफ डिकेड के बाद अचानक ही जर्मनी बहुत धीरे धीरे बहुत डेवलप हो गया। तो इतना आगे बढ़ गया, जर्मनी पावरफुल देश बन गया और ये अचानक ही ऐसा जैसे कि मिरेकल हो गया हो, इसलिए उसको जर्मन मिरेकल के नाम से जाना जाता है कि जर्मन देश जो इतना वीक हो गया था, कमज़ोर हो गया था, वो इतना ज़्यादा पावरफुल और डेवलप हो गया और इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि लेकिन ईस्ट जर्मनी जो है, ईस्ट जर्मनी का जो पार्ट है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन में इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। भले जर्मनी डेवलप हुआ लेकिन ईस्ट जर्मनी के कंडीशन में इतने अच्छे डेवलपमेंट नहीं आए। और ईस्ट जर्मनी की जो गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, उसने इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए अपनी जर्मनी की जो लोग थे, प्रजा थी, उसकी होप्स यानी कि उनकी आशाओं को क्रश कर दिया, कुचल दिया। तो स्टूडेंट्स, ऐसे एक जर्मनी जो एक टाइम पे अलग हो गया था और ईस्ट और वेस्ट में बदल गया था, इतना वीक हो गया था इकोनॉमिकली, अचानक ही जर्मन देश इतना आगे बढ़ गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पार्टीशन ऑफ जर्मनी के बारे में इंफॉर्मेशन। अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यानी जर्मनी फिर से एक कैसे हुआ वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।